बेटा देखिए, आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेस स्प्रिंग। बेटा देखिए, स्प्रिंग को जैसे एक एंड बल यहाँ टाइड है बेटा, बेटा see here, if this is a spring and its natural length is this, what is the spring force constant? K. What is K? When we are extended by 1 meter, what is the restoring force it apply? That is called spring force. Beta, we have already discussed that what is the spring force. That you know that if any spring is stretched like this or compressed like this, but when we will come stretch it by distance x, then in opposite direction it will exert force kx minus means opposite to x. बेटा लगाएगा फोर्स, हम स्प्रिंग को अगर खींच दिए x लंबाई तो ये कितना उल्टा फोर्स लगाएगा? उल्टा kx। बेटा k क्या है? 1 मीटर एक्सटेंड करेंगे तो कितना उल्टा फोर्स लगाएगा? उसको स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। इलास्टिसिटी की वजह से, इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी of any substance due to which if any body is deformed, बेटा जैसे रबड़ को हम लोग डिफॉर्म करेंगे, उसको खींच देंगे, बेटा वो उल्टा फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि बेटा उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं स्प्रिंग की तरह, और जब हम उनको खींचेंगे बॉन्ड में स्ट्रेचिंग आ जाएगी। जैसे स्प्रिंग को खींचे स्ट्रेचिंग आ जाएगी, बेटा ये उल्टा फोर्स लगाएगा। 1 मीटर खींचेंगे तो k और 1 मीटर खींचे तो kx लगाएगा। ये क्या है बेटा? स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। दिस इज द अमाउंट ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स और इलास्टिक फोर्स ऑफ द स्प्रिंग which is applied by the spring when its length is extended by 1 meter. So therefore if its length is extended by x meter, it will exert spring force, that is kx. Why minus sign? Because when you extend it, it will exert force in opposite direction. बेटा अब देखिए, जैसे रबड़ को आप लगाते जा रहे, खींचते जा रहे, बेटा छोड़ देंगे, उससे जो पत्थर है वो बहुत दूर जाकर गिरेगा। और ज्यादा खींचे, होता क्या है, उसके अंदर में एनर्जी भर जाती है। वो एनर्जी किसने दिया? हमने दिया। हमने वर्क परफॉर्म किया तो उनके बॉन्ड स्ट्रेच हो गए, जिस तरह से रबड़ स्ट्रेच हो जाता है। और ज्यादा हमने वर्क किया, और ज्यादा स्ट्रेच हो गए। whatever be the work done that we are doing, that is stored inside their bond. Similarly, spring is there. When we perform work on the spring by stretching its length, the energy is stored inside it. Let me take a spring. So what is the elastic potential energy? This is the amount of work done. This is the amount of work done in stretching the length, stretching the spring by given length. But why we say that this is the work done? Because whatever be the work done, we will perform in stretching the spring. This work done will be stored inside the spring.
in the form of potential energy, elastic potential energy or spring potential energy. So let's see what is the spring force constant K. If the spring is stretched by length x, then spring force applied by the spring what is the spring applied by the spring कितना होगा बेटा माइनस के एक्स. If we further increase the length of the spring by dx, बेटा यहां से फर्दर dx इसकी लेंथ को बढ़ाया. dx क्या होता है? दिस इज वेरी वेरी स्मॉल. dx मींस डिफरेंशियल स्मॉल, x के बाद dx तो बहुत छोटा फोर्स यही लगेगा. बेटा जितना स्प्रिंग लगाएगा उतना ही हमें फोर्स लगाना पड़ेगा. तो जब इसकी लंबाई को हमने when we have extended the length of the spring by x, बेटा यहां से this is the original length. From here, if we stretch the length of the spring by x, then the spring is applying restoring force k minus kx. And whatever be the force that spring is applied, if we are applying same amount of force in positive direction and we displace it by distance dx, then work done by the external agent, that is by us, will be f dot dx. बेटा cos 0. क्यों? फोर्स भी हमने इधर लगाया, एक बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि हम स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर एनर्जी जाएगी. तो हमने फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेस भी इधर किया cos 0. बेटा फोर्स कितना लगाया kx, डिस्प्लेसमेंट हुआ dx और cos 0 1. बेटा मानिए कि इसकी लंबाई को हमने 0 से कैपिटल X बढ़ाया. कितना बढ़ाया? ये स्मॉल x है, कैपिटल X इसकी टोटल लेंथ को बढ़ाया. तो बेटा छोटे छोटे पार्ट का वर्क डन निकाल देंगे. टोटल कितना वर्क डन करना पड़े इसकी लंबाई को 0 से x तक बढ़ाने में, तो हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और वही वर्क डन इसके अंदर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा. Now the total work done in stretching the spring from 0 to capital X is stored as potential energy, inside the spring. Potential energy inside the spring. बेटा ये टोटल वर्क डन 0 से W, यही स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में U. बेटा के कांस्टेंट है, x इंटू dx का इंटीग्रेशन करना है बेटा 0 से टोटल लेंथ कैपिटल X. बेटा बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? और यही जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल इनसाइड द स्प्रिंग.
बेटा यू नो x का पावर क्या है बेटा 1, इंटीग्रेशन में पावर क्या होगा बेटा 1 है पावर, तो x इंटू डी एक्स पावर 1, तो n प्लस 1 2, और यही पावर नीचे लिमिट 0 अपर लिमिट x, क्योंकि हमें स्प्रिंग की लेंथ को 0 से टोटल x लेंथ बढ़ाने में जो वर्क डन करना पड़ा वही वर्क डन बेटा ये वाली लेंथ नहीं, ये तो ओरिजिनल स्प्रिंग की लेंथ थी, हमें स्प्रिंग को यहां से बढ़ाना है, यहां 0 काउंट करेंगे, उसकी लेंथ ओरिजिनल से लेकर के x लेंथ तक, यहां से लेकर के यहां ये लेंथ बढ़ाई, ये तो ओरिजिनल लेंथ स्प्रिंग, तो यहां से लेकर यहां दैट इज 0 टू x नेचुरल लेंथ के बाद। अब ये देखिए बेटा क्या होगा, 2 कॉमन आ जाएगा, हाफ के बेटा बताइए अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, बेटा ये क्या हो जाएगा 0, हाफ के एक्स स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी स्प्रिंग। जब हम लोग किसी स्प्रिंग की लंबाई को 0 से x बढ़ा देंगे, किसी स्प्रिंग की लंबाई को 0 से x बढ़ा देंगे कैपिटल X, उसके लिए हमने वर्क डन किया स्प्रिंग पर, और वही वर्क डन स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। This is known as potential energy inside the stressed spring. No, serious. इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर याद रखिए। जैसे कि मानिए क्वेश्चन है मास ऑफ 50 kg, बट आप देखते हैं आपके यहाँ गैस देने सिलेंडर देने आता है, उसको आपके सामने वेट करके दिखाता है, ऐसे हुक लगा होता है, अंदर में स्प्रिंग लगा होता है, वो इससे स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। लैब में आपने स्प्रिंग बैलेंस देखा हुआ है? यस सर। हाँ बेटा ये क्या होता है, इस तरह से ये बना हुआ है, इसके अंदर में स्प्रिंग रहता है और यहाँ पर उसका नीडल रहता है, बेटा नीडल उसका यहाँ रहता है, ये स्प्रिंग रहता है, नीडल यहाँ रहता है। अब देखिए बेटा ये यहाँ से हुक लगा रहता है, हुक से सिलेंडर को लटका दिए, बेटा एम मास है, कितना फोर्स लगाएगा, अपने वेट के बराबर फोर्स लगाएगा mg, जब फोर्स लगाएगा तो ये खींच जाएगा, मानिए कि ये खींचा कितना x, कितना खींचा x खींचा, तो ये खींचा क्यों, क्योंकि नीचे क्या लगा फोर्स, उल्टा कि ये क्या लगाएगा माइनस के एक्स, के दिया हुआ होगा इसका, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट दिया होगा, तो बेटा के एक्स इज इक्वल्स टू एम जी लिख देंगे, यही जितना एक्सटेंशन होगा के एक्स, एक्स 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 इज द एक्सटेंशन, के इज द स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। तो बेटा जैसे ही हम इससे उसके हुक से मास को लटकाएंगे ये खिंच जाएगा और स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा x, वेट फोर्स इज इक्वल टू kx, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, या मास निकालना होगा तो kx बाई d, मास निकल जाएगा बेटा, हम इसके मास को निकाल लेते हैं। हाँ भाई ये इतने केजी का सिलेंडर है, तो बेटा स्प्रिंग बैलेंस इज द बैलेंस which is used to measure the mass of the body, which is used to measure the mass of the body। अब देखिए बेटा मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, क्वेश्चन है there is a spring of a spring force constant 200
Newton per meter. If a mass of 50 kg is hanged, find the extension in the spring. बेटा जल्दी बताइए, कैलकुलेट करके बताइए। बेटा एक स्प्रिंग है, इस सीलिंग से लटका हुआ ये स्प्रिंग, हमने इसके लोअर एंड में क्या लगाया, 50 केजी का एक मास लटकाया, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्या होगा? What is the extension in the spring? What is the extension in the spring? बड़ा सिंपल सी बात है, ये फोर्स लगाएगा नीचे mg, और जैसे ही फोर्स लगाएगा ये क्या होगा, एक्सटेंड कर जाएगा बाय लेंथ x। तो फोर्स इज इक्वल्स टू kx। ये फोर्स कितना लगेगा बेटा, इसकी वेट की वजह से, जो कि x के बराबर होगा। x इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू क्या होगा, mg। बेटा कैलकुलेट कीजिए, x इज इक्वल टू मास क्या है 50, g क्या है 9.8 और k क्या है 200। बेटा ये होगा 2.45 मीटर एक्सटेंड करेगा लेंथ इसकी। कितना एक्सटेंड करेगा, 2.45 मीटर एक्सटेंशन इसका होगा। अब देखिए बेटा, दूसरा एक क्वेश्चन दे रहा हूं। बेटा मानिए कि यहां पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, फोर्स कांस्टेंट है 10,000 है, जो ट्रेन के बीच में लगे रहते स्प्रिंग, एक बोगी से दूसरे बोगी जब हिट करती है ना बेटा, तो इतने मोटे मोटे जो लगे हुए रहते हैं ट्रेन के, वो शॉकर उसमें लगा हुआ रहता है बेटा। ट्रेन की बोगियां जब टकराती है तो वो शॉकर अंदर जाता है, ताकि एक बोगी दूसरे बोगी के अंदर क्रश न कर जाए। बेटा ये मानिए कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और यहाँ एक ट्रक आ रहा है जिसका ब्रेक फेल हो गया। ट्रक का मास है 1000 kg, और ये कितने स्पीड से आ रहा है, इसकी स्पीड है 144 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये जाकर जब इसे टकराएगा, इसके ब्रेक फेल हो गई, इसको रोकने के लिए क्या किया गया बेटा, एक जैसे ट्रेन फेल कर जाते, मानिए ट्रेन की ब्रेक फेल कर रही है, तो उसको एक अलग सेंटिंग वाले लाइन में भेजते हैं, वो बिल्कुल जिसका कि लास्ट में बिल्कुल क्या रहता है, लास्ट में जाकर के 2 पिलर्स लगे होते मोटे मोटे, उनमें रोकने के लिए डिवाइस लगा रहेगा। मानिए कि मैंने डिवाइस यहाँ लगा रखा है स्प्रिंग, तो जब ये कोलाइड करेगा फाइनली रुक जाएगा। फाइंड द when the truck collided with the spring, find the compression, find how much compression occurs, how much compression occurs in the spring, when truck finally comes to rest, क्यों बेटा क्या होगा, जब जैसे ही ये ट्रक टकराएगा, ये ट्रक टकराने लगेगा तो इसे दबाने लगेगा, और जैसे ही दबाने लगेगा ये रेस्टोरिंग फोर्स उल्टा देगा,
तो ट्रक की स्पीड क्या होगी, घटेगी और घटते जाएगी और घटते जाएगी, स्प्रिंग को दबाते जाएगा और फाइनली रुक जाएगी। स्प्रिंग को ये दबाता जाएगा और स्प्रिंग उल्टा फोर्स लगाता जाएगा और इसकी वेलोसिटी को फाइनली क्या कर देगा, 0। माने कि इसमें कंप्रेशन हो गया x। अब निकालिए बेटा कंप्रेशन कितना होगा, बताइए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा ये एक चीज बताइए, ट्रक में मास है, ट्रक में वेलोसिटी है। बेटा इस वेलोसिटी को चलिए मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। 144 5/18 बताया था बेटा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। 18 8 जा 8 5 जा 40 मीटर पर सेकंड है, इसकी रफ्तार है 40 मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में 144 किलोमीटर पर आवर। बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मालूम है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ ट्रक हाफ mv²। बेटा जब ट्रक फाइनली टकरा करके रुक जाता है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, जल्दी बताइए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, 0। जब इसको कंप्रेस कर देगा x, माने कि जब ट्रक टकराया ये स्प्रिंग को लगा कंप्रेस करने और कंप्रेस और कंप्रेस और इसकी वेलोसिटी घट रही है क्योंकि उल्टा फोर्स डाल रहा है kx। समझ आ रही है बेटा, और घटते 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 लेट x बी द कंप्रेशन। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और बेटा जो वर्क डन किया उसी वो क्या करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस कर, तो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को टू वर्क डन, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस, अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब जब इसको दबा देगा तो इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी, जब एक्स लेंथ कंप्रेस हो जाएगा तो इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी। तो इसे लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखेंगे इसे, यहां लिखेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रक is equal to gain in loss of kinetic energy of truck is equal to gain in potential energy of spring। बेटा स्प्रिंग दबेगा, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आएगी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल लॉस। बेटा चेंज अगर होता तो फाइनल माइनस इनिशियल करते, बेटा अगर चेंज होता तो फाइनल माइनस इनिशियल। बेटा यहाँ ट्रक जब टकरा रहा है तो उसकी एनर्जी लॉस होगी, लॉस को बोलता है इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू, उसमें पोटेंशियल एनर्जी कौन स्टोर होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। बेटा इसे ही सॉल्व करेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इनटू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ये किसका मास है बेटा, ट्रक का। और ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कहां स्टोर हो जा रहा है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कहां स्टोर हो जा रहा है, कहां चला जा रहा है, स्प्रिंग को दबाने में। स्प्रिंग को जब कंप्रेस किया तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर। बेटा मास बताइए, मास क्या है ट्रक का 1000 और वेलोसिटी है 40 का स्क्वायर माइनस हाफ, मास है 1000 और फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा 0, क्योंकि रुक गया वो ट्रक इज इक्वल्स टू हाफ के क्या है बेटा 10,000 इंटू एक्स स्क्वायर। अब बेटा हाफ 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 दोनों साइड कैंसिल कर देते हैं कॉमन लेके, और ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। अब यहां बचेगा 1000 इंटू 40 का स्क्वायर 1600
इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ दोनों साइड कैंसिल बटा ये तो जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो आ रहा है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब ये बचा 110,000 into x square बटा 1 2 3 4 1 2 3 4 तो x स्क्वायर कितना, x कितना हो गया बेटा रूट 160 मीटर, कितना हो जाएगा बेटा रूट 160 मीटर। बेटा ये बात बताइए हाउ मच यू, हाँ बेटा देखिए vertical circular motion, तो see here if a ball of mass m is hanged through a spring and the string is massless, what is the mass of this ball? बेटा ये बॉल का मास क्या है m, what is the mass of the ball m? बेटा ये यहां से फिक्स है, बेटा ये यहां से हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, ये पेंडुलम की तरह आगे जाएगा फिर पीछे आ जाएगा, ऑसिलेट करेगा बेटा, हमने इसे और ज्यादा फोर्स लगाया, काम में चल रहा है और ज्यादा ऊपर जाएगा फिर आ जाएगा वापस, ऐसे ऑसिलेट करेगा, यहां से फिक्स है बेटा। बेटा अभी भी काम नहीं चल रहा और जो और ज्यादा वेलोसिटी दी है बेटा ऐसे गया और ऐसे गिर गया, और काम नहीं चल रहा है। हाँ फिक्स कीजिए, कितना देर लगेगा? 5 मिनट। बेटा क्या किया, इतनी ज्यादा वेलोसिटी थी ये गया और ये यहां तक पहुंच गया, बेटा यहां तक पहुंचने के बाद यहां भी नहीं रुका बल्कि ये घूम गया और ये घूम रहा है। अब ये देखिए बेटा इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म, ये इसको बोलेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्या बोलेंगे इसको? कहेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो बेटा ये क्या हुआ, लोएस्ट पॉइंट पर बॉडी को इतनी ज्यादा वेलोसिटी दी कि बॉडी जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी घट रही है और घटेगी। बेटा ये क्या हुआ, हमने यहां से पुश किया जैसे, बेटा ये यूनिफॉर्म वर्टिकल ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है बेटा, इसकी वेलोसिटी घटेगी घटेगी और घटेगी और घटेगी, हाईएस्ट पॉइंट पर भी जीरो नहीं हुआ, हाईएस्ट पॉइंट पर भी इतनी वेलोसिटी है कि इस पर ऊपर की ओर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बेटा सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, mv² बाई r होता है या नहीं होता है बेटा? माने कि h है हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, बेटा vh क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर, क्योंकि बेटा देखिए यहां से जैसे ही वो नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी बढ़ने लगेगी बढ़ने लगेगी, क्यों? ग्रेविटी के अंदर फॉल कर रहा है, वो यहां से टाइड है, बंधा हुआ है। तो बेटा देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए ये जरूरी है कि ये जो रस्सी है, ये स्ट्रिंग जो है वो हमेशा तना हुआ होना चाहिए,
नहीं तो बेटा यहाँ टेंशन कब होगा तो ऐसे झुक जाएगा और मोशन ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ये रस्सी हमेशा तना हुआ होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए इसमें और ये घूमता हुआ होना चाहिए। अब दूसरी सबसे बड़ी बात कि बॉडी जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी और घटेगी, लेकिन यहाँ घट के जीरो नहीं होना, यहाँ इतना वेलोसिटी मेंटेन रखना है कि इसमें रस्सी में तनाव बना रहे, टेंशन बना रहे। नाउ द क्वेश्चन arises how we can maintain the tension in the spring. But you know that if anybody is moving in a circular path, then Newton's third law force act on the body in the direction opposite to the action force. You know, for rotating any body, a centripetal force is required whose direction is acting toward the center, and against this force, centrifugal force will act. Beta, this centrifugal force will try to stretch. Beta, this centripetal force will drag this string in outward direction. बेटा ये बाहर की ओर खींचेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल मैंने पढ़ाया था बेटा mv स्क्वायर अपॉन r। क्या होता है बेटा? बेटा आप देखिए एक्सेलरेशन पढ़ा था ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r। बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनटू मास, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक्शन के अगेंस्ट में रिएक्शन जो लगता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नाउ सी हियर, एट द हाईएस्ट पॉइंट फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, द वेलोसिटी फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फॉर कंप्लीटिंग vertical circular motion, velocity point should be such that much amount so that tension in the string should be greater than 0. तो देखिए बेटा ये रस्सी यहां से बंधा हुआ है, तो ये रस्सी में खिंचाव सेंटर की ओर होगा, ये टेंशन यहां होगा। अगर मानिए ये यहां की बात करें इस पोजीशन की, तो mg वेट नीचे खींचेगा और साथ में यहाँ लोएस्ट पॉइंट पर मानिए कि वेलोसिटी है vl लोएस्ट पॉइंट पर, तो ये बाहर की ओर भी खींचेगा, सेंट्रीफ्यूगल यहां भी लगेगा mvl का स्क्वायर बाई r, l मींस लोएस्ट पॉइंट बाई r। बेटा ये बॉल का मास तो चेंज नहीं होने वाला, बेटा ये बॉल का मास चेंज होने वाला है क्या? बॉल का मास चेंज होने वाला नहीं है। तो ये ग्रेविटी तो वेट फोर्स नीचे ही लगेगा और साथ साथ में जब बॉल यहाँ घूम करके आएगा यहाँ पर, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर, रेडियस के बाहर, आउटसाइड दैट इज सेंट्रीफ्यूगल लगेगा जो खींचेगा। बेटा एक चीज देखिए, आप बॉल ले लीजिए और बॉल को रस्सी से बांध लीजिए, बेटा जोर जोर घुमाइए, वो बॉल आपको किधर खींचेगा? बाहर की ओर खींचेगा, उसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। और आप किधर फोर्स लगाइएगा उसे घुमाने के लिए? हमेशा सेंटर की ओर खींचिएगा उसे, हमेशा सेंटर की ओर खींचिएगा। सो the force which is required to move a body in a circular path that you will apply, and the direction of that force will be always acting towards the center of circular path. This force is called centripetal. If body here, centripetal is along this. If body here, centripetal along this. If body is here, centripetal acting along this, and always centrifugal outside, mv square by r. Body will be here, mv horizontal position पर जो वेलोसिटी होगी,
बेटा देखिए सबसे ज्यादा वेलोसिटी VL होगी लोएस्ट पॉइंट पर, उससे कम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, और सबसे कम हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होगी। हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी सबसे कम होगी बेटा, क्योंकि देखिए बेटा सिंपल सी आप पेंडुलम को देखोगे ऐसे पुश करते हैं ऊपर जाता है वेलोसिटी घटते जाती है। बेटा हमने पेंडुलम ही नहीं छोड़ा, इसको इतना तेज पे हमने वेलोसिटी दिया कि ये लगा सर्कुलर पाथ में घूमने। ये एंड फिक्स है, ये बॉल है, ये स्ट्रिंग है, इसको यहाँ कील लगा कर फिक्स कर दिया और इस बॉल को इतना जोर से यहाँ से वेलोसिटी दिया कि ये ऊपर जा करके भी नहीं रहा बल्कि ये बार बार आसानी से घूम रहा है। जैसे ही नीचे से ऊपर जा रहा है इसकी वेलोसिटी घटते जा रही है। तो velocity of the body goes on decreasing and at the height point it is minimum, and again as the body moves down it is falling again under gravity, so velocity goes on increasing from here. Velocity increases here it becomes maximum and again goes on decreasing minimum, फिर increase हो रहा है maximum minimum. बेटा you are getting? No. Yes, sir. For completing successful vertical circular motion, बेटा टेंशन इन द स्ट्रिंग, बेटा देखिए टेंशन तो सबसे कम हाईएस्ट पॉइंट पर होगा और सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ है तो यहाँ टेंशन सबसे ज्यादा होगा। अब सवाल उठता है यहीं पर, यहां अगर इसने कंप्लीट कर लिया तो बाकी नीचे तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, रस्सी में इतना तनाव बढ़ता जाएगा कि आसानी से वो सर्कुलर मोशन कर जाएगा। तो मिनिमम क्या होना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी? What should be the velocity of the body at the highest point so that it will complete vertical circular motion? Tension in the spring should be greater than 0. देखिए बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 से बड़ा होना चाहिए। अब ये कहानी आती है, यहीं से शुरुआत होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखिए बेटा टेंशन इधर लग रहा है, वेट फोर्स किधर लगेगा बेटा? नीचे, और mv स्क्वायर अब बाई आर किधर लगेगा? ऊपर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर। देखिए बेटा नीचे लग रहा है mg, नीचे लग रहा है टेंशन। हमेशा जहां रस्सी फिक्स होता है ना बेटा, रस्सी उसी की ओर खींचती है, सेंटर की ओर खींचती है हमेशा, और यही सेंट्रीपिटल दे रहा है टेंशन ही। टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, ऊपर क्या लग रहा है बेटा? एम वी एट द हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ द सर्कल, एम वी स्क्वायर बाई आर। एच फॉर वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। नाउ बेटा टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये क्या लिखेंगे? एम वी एच स्क्वायर बाई आर। बेटा ये इधर जाएगा माइनस एम वी। बेटा ये क्या होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यानी कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होना चाहिए। टेंशन शुड बी ग्रेटर देन 0 से, टेंशन शुड बी ग्रेटर देन 0। और टेंशन की वैल्यू क्या है बेटा? एम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। बेटा माइनस एम जी इधर गया तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा? प्लस एम जी। एम वी एट द हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर बाई रेडियस आर, एम एम कैंसिल आउट, ये आर इधर जाएगा जी आर। वी शुड बी, एक मिनट बेटा, टी की वैल्यू ये है और ये 0 से बड़ी होनी चाहिए बेटा। ओहो ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। टेंशन की वैल्यू ये है बेटा, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। बेटा आर इधर गिर गया, ये अल्टीमेटली इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा? अब यहां देखिए बेटा ये इधर गया जी आर, जी आर
bh का स्क्वायर, तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट जी आर होना चाहिए। फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, what should be the velocity at the highest point? It should be greater than root gr. R is the radius of circular path and g is 9.8 acceleration due to gravity. तो बेटा मिनिमम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे कि कम से कम यहाँ टेंशन तो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये यहाँ से नीचे उतरेगा इस तरह से जितना स्टार्ट होगा ग्रेविटी में, ये यहाँ से बंधा हुआ है बेटा, ये ग्रेविटी के अंदर आएगा तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, तो टेंशन तो यहाँ से ज्यादा ही होगा सब जगह, और यहाँ तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ उतरने के बाद इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा टेंशन होगा। तो कहने का मतलब हमने क्या सीखा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए रस्सी में तनाव हमेशा बरकरार रहना चाहिए ताकि ये गोल गोल घूम सके। बेटा आप बॉल को बांध करके और हाथ में रस्सी से बांध करके आप रस्सी पकड़िए एक एंड पर और दूसरे एंड पर बॉल हो, उसे घुमाइए। बेटा आपको बार बार फोर्स लगाना पड़ेगा कि रस्सी में तनाव बना रहे, और यही चीज जब आप वर्टिकल सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे तो बेटा यहाँ पर तो ग्रेविटी के अंदर ऐसे ही बॉल गिरना चाहता है, तो रस्सी में तनाव तो सबसे ढीला रस्सी ऊपरी पॉइंट पर पड़ेगा। तो बॉडी को अगर चाहे कि हम सक्सेसफुली वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमते रहे तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन शुड बी ग्रेटर देन 0, और इसके लिए हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कम से कम रूट जी आर से बड़ी होनी चाहिए, कम से कम इतनी से बड़ी होगी तो वो बॉडी वर्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा, अगर कम से कम इतनी वेलोसिटी हो। बाकी आपकी मर्जी, इससे कितना हो ज्यादा दे, आसानी से मूव करता रहेगा, कम से कम इतना चाहिए। अब देखिए बेटा मानिए कि बॉडी यहां से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर आया, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q पोजीशन पर आया। बेटा बॉल ऐसे मूव कर रहा है। बेटा ये ग्रेविटी के अंदर मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है, और जी डायरेक्ट नीचे लगता है। बेटा बॉडी जब यहां से यहां आया, वर्टिकल फॉल कितना हुआ? R के बराबर। बेटा ये देखिए वर्टिकल फॉल यहां से ऐसे आया, नीचे कितना आया वर्टिकल R, यहां वेलोसिटी कितना है बेटा? रूट जी आर। तो लिखेंगे when the ball falls under gravity from point P to Q, इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा? P से Q आया, P to Q, देन वेलोसिटी गेन कितना होगा? देन वेलोसिटी गेन, क्योंकि हमने इतना वेलोसिटी देने के बाद छोड़ दिया, हाईएस्ट पॉइंट पर रूट जी आर देने के बाद छोड़ दिया, अपने आप कंप्लीट करता रहेगा सर्कुलर मोशन में। तो बेटा ये अपने आप फॉल करेगा, देन द वेलोसिटी गेन एट लोएस्ट पॉइंट at horizontal position at gain at point Q। बेटा आप ये फॉर्मूला देखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अभी देखिए बेटा आप बोलेंगे बॉडी तो ऐसे ही आ रहा है भाई, तो हमने वर्टिकल हाइट r ही लिया, ये बात क्यों लिया? क्योंकि ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है, और g के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेंगे। When the body moves from here to here, the displacement is r. So what is the displacement? What is the displacement?
displacement is r. What is here velocity, initial velocity? root gr. root gr का स्क्वायर क्या होगा बेटा? Yeah. प्लस 2gh. कितना नीचे आया? g के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? r. तो v स्क्वायर बेटा 2gr प्लस gr 3gr. horizontal position. तो वेलोसिटी एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज इक्वल टू रूट 3gr से ज्यादा. क्यों बेटा? ये वेलोसिटी इतना से ज्यादा थी तो ये भी इससे ज्यादा हो जाएगा. बेटा बात आ रही समझ में आपको? बेटा देखिए फिर से ध्यान से. बेटा यहाँ रूट 2gr वेलोसिटी देने के बाद छोड़ दिए. बेटा ये बॉडी ऐसे आ रहा है, यहां से ये 2πr/4 लेंथ मूव किया. बेटा ये डिस्टेंस हुआ. डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल नहीं गया क्योंकि जी डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है. तो बेटा यही है इंपॉर्टेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का और वेक्टर का. बेटा जी एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है और जी की वजह से अपने आप फॉल कर रहा है बॉडी. एक बार यहाँ वेलोसिटी देने के बाद छोड़ दिया. बेटा ग्रेविटी नीचे लग रही है बॉल पर, हमेशा नीचे, तो बॉल भले ही ऐसे आएगा. हम डिस्प्लेसमेंट ये लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है बेटा? जी हमेशा नीचे लगता है. बेटा इसीलिए प्लस लिखा क्योंकि नीचे फॉल होगा तो वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी. और कितनी बढ़ के हो जाएगी? यहाँ पर रूट 3gr से बड़ी हो जाएंगे. अब बताइए बेटा what will be the tension in the string at the horizontal position? ये तो सेंटर की ओर होगा. ये टेंशन कितना होगा बेटा? टेंशन कितना होगा बता सकते हैं? What is the tension? बेटा यहाँ अगर मास है, ग्रेविटी किधर लगेगी? वेट नीचे mg. और यहाँ वेलोसिटी इतने, तो सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा? बाहर. वेट का कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं लगेगा क्योंकि ये 90 है. केवल ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा और इसी की वजह से यहाँ टेंशन होगा. तो टेंशन कितना होगा बेटा? m v स्क्वायर. स्क्वायर कीजिए बेटा 3gr. mv स्क्वायर बाई r से r कैंसिल. Tension at the horizontal position should be greater than 3mg. हमने हाईएस्ट पॉइंट पर क्या टेंशन लिया हुआ था बेटा? It should be greater than 0 और equal to 0. इसका मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा. बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो भी चला जाएगा. 0 के बराबर होगा तो ये गिर जाएगा, मोशन डिस्टोर्ट हो जाएगा. जीरो से हल्का सा ज्यादा होगा तो भी चल जाएगा. रस्सी तना हुआ होना चाहिए. There should be a tension in the string. बेटा you are getting this or not? यहाँ वेट डायरेक्ट नीचे लगेगा. वेट का कोई भी कंपोनेंट टेंशन के डायरेक्शन में नहीं लगेगा क्योंकि ये 90 डिग्री है. वेट इज अ फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. So the component of any vector along 90 degree direction will be 0. F cos 90, mg cos 90, cos 90 is 0. बेटा बताया था हमने cos 90 क्या होता है? 0. तो दोनों component of weight will direction. So बेटा when the body will be here, the velocity will be tangential and force and centrifugal force will be outward. And this force will pull this string outward. So equivalent amount of tension in the string will be towards the center, and tension in the string will be at the horizontal position. Horizontal position will be mv square. v कितना है बेटा? इसकी स्क्वायरिंग 3gr. mv square by r से r कैंसिल, 3mg होगा बेटा. अब आप बताइए पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगी? बॉडी यहां से यहां आया, कितना वर्टिकल डिस्प्लेस किया? r प्लस r, क्योंकि g डायरेक्ट लग रहा है डाउनवर्ड.
बेटा आर प्लस आर कितना होगा 2r, कितना हो गया हो जाएगा Yes. 2R. r। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन द बॉडी फॉल अंडर फ्रॉम p to p q r, इस लोएस्ट पॉइंट को r मान लीजिए बेटा, टू r, देन द वेलोसिटी गेन एट पॉइंट r। बेटा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से यहां वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट r प्लस r, 2r, 2 into 4gr, 4gr plus r, 5gr, बेटा ये हो जाएगा 5gr से बड़ी। बेटा यू आर गेटिंग और नॉट, बेटा यहाँ पे जब आ जाएगा when the body moves, the body is moving along the circumference, although the body is moving along the circumference, but you know we are applying, this is the importance of this equation. All these are vector quantity, velocity, acceleration, displacement. This is not distance. So when the body, you know, when any body is moving in a vertical circular path, the gravity is always acting vertically downward. Either the body here mg will be downward. So in the direction of acceleration, what is the displacement when the body moves from p to r? It is the r plus r, that is, देखिए बेटा ये आपको बात आई समझ में बेटा, जब यहां से p से q नहीं r पॉइंट तक आएगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट r रेडियस प्लस r रेडियस 2r हो जाएगा। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, h की जगह 2r, 2 2 जा 4, 4gr प्लस 5gr, वेलोसिटी हो गई एट द लोएस्ट पोजीशन। तो बेटा यहां अब आप देखिए बेटा, ये इस क्वेश्चन में देखिए यहां क्या हो गई बेटा, वेलोसिटी ग्रेटर देन √5gr। अब ये बताइए बेटा, तो नीचे होगा mv स्क्वायर बाई r, बेटा इस v की इसकी स्क्वायरिंग 5gr बाई r। बेटा वेट तो नीचे ही लगेगा बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लग ही रहा है, साथ में इस पर वेट भी लग रहा है। वेट कितना लग रहा है बेटा, वेट कितना लग रहा है mg प्लस 5mg। तो यहाँ टोटल टेंशन हो जाएगा बेटा, टेंशन हो जाएगा एट द लोएस्ट पोजीशन ग्रेटर देन 5mg प्लस mg 6mg हो जाएगा। तो बेटा ये क्या है, ये मिनिमम, what this is the case of minimum velocity that any body should be given at the highest point of the vertical circular path, so that body will move in a circular vertical path motion. But once we are giving how much velocity at the highest point for √gr, how much velocity √gr at the highest position, then the body will automatically complete vertical circular motion. What will happen? The body fall again under the gravity, the velocity of the body goes on increasing. Here the velocity was √gr, here √3gr, here is √5gr. So velocity goes on increasing, and after this again it starts decreasing. So this is the dynamics of what? Vertical circular. This is the dynamics of vertical circular motion. बेटा मानिए कि रेडियस है 2 मीटर और यहाँ वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। बताइए बेटा यहां से जब 120 डिग्री पर आएगा, अपने आप ग्रेविटी में ये फॉल कर रहा है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, जल्दी बताइए। यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जल्दी बताइए। यहां ये वेलोसिटी देने के बाद छोड़ दिया,
बेटा ये एंड फिक्स है और एक बॉल है, बॉल का मास है 1 kg। बेटा ये इससे कुछ भी नहीं लेना, हमने मास से कोई रिलेशन देखा क्या बेटा वेलोसिटी का? नहीं। √2 g r, √3 g r, √5 g r, बेटा मास से कोई रिलेशन नहीं होता है वेलोसिटी का यहाँ। अब ये बताइए बेटा 120 डिग्री जब फॉल हुआ तो मैंने बोला कि यहाँ वेलोसिटी बताइए, जब यहाँ हमने बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया, बॉडी इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ, दिस एंड इज फिक्स्ड and here the ball is attached. What is the mass of the ball? 1 kg. We have given how much velocity? 20 meter per second. Now what is the question? When the body covers an angle of 120, what will the velocity of the body? But definitely you will say, since the body is falling down, so velocity will increase. कितना increase करेगा बेटा? तो formula लगाएंगे, v square equal to u square plus 2gh. अब height कौन सा लेंगे बेटा? vertical height ये लेंगे। बताइए बेटा vertical height ये बेटा हो गया r। अब आपको केवल ये निकालना है, ये जुड़ जाएगा इतना r, ये r में इतना जुड़ जाएगा, तो ये रेडियस है बेटा, ये r है, ये 90 है, 120 ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा बेटा? हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर होता है, ये होगा r sin 30, sin 30 होता है 1/2, यानी कि r/2 हो गया, तो r प्लस r/2 ये हो गया r। कितना वर्टिकल हाइट आया बेटा? तो v स्क्वायर इक्वल टू u कितना बेटा? 20 का स्क्वायर प्लस 2g, हाइट क्या आया बेटा? r प्लस r/2, 3/2r, 2 से 2 कटा, 3gr। अब सबकी वैल्यू पुट कीजिए, 20 स्क्वायर 400 प्लस g 10 रख लीजिए बेटा, और g रख लीजिए 9.8 की जगह 10 रखिए, एज्यूम कर लीजिए, अदरवाइज आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। आप पुट कीजिए 9.8 इंटू रेडियस क्या है 2, ये क्या हो जाएगा 19.6 इंटू 3, 19.6 इंटू 3, और v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ऐसे निकाल लेंगे 400 प्लस एक, यस बेटा ये हो जाएगा 58.8 प्लस दिस, ये हो जाएगा √458.8 का √। इस तरह से हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं।